Ladies and gentlemen, I am with Manan Bharadwaj, someone who is into music composing. He's a music director. He's a singer himself, and I can go on and on about his talents. He's a multi-talented man. His recent track, Never Together, just came out, and it's a huge hit because I personally love the song. Manan, thank you for talking to CNN News 18. Thank you so much. Yeah. But before I start talking about your music, let's talk about who Manan Bharadwaj actually is. How will you describe yourself? I describe myself as an artist, just a single word. Just a single word, just a but single word. you have multiple talents. How can That's why Yeah. I call myself just an artist. क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, how can I say like I'm a music director, I'm a composer, I'm a writer, I'm a singer. Sometimes I direct videos too. Yeah. I've directed more than like 500 videos till date. So artist is the better description. Yeah, indeed. An artist. Manan, I saw your music video. It looks lovely. It's an emotional one. How would you describe the storyline? What's the inspiration behind it? So basically this is the second music video. We have done one more, but we didn't like the story and the pain in it. So we decided finally we should do something very in a very subtle manner. So we finally decided to make a story revolving around an army officer, जो obviously छुट्टी के ऊपर आया and he suddenly realized कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी शादी हो रही है. So वहाँ थोड़ा ज़्यादा पेन है कि वो कुछ कर नहीं सकता, मतलब you can not say anything. तो जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाते, when you are not able to say anything, when you are not able to express anything to anyone, वो थोड़ा ज़्यादा painful होता है. So that's why we chose this character and make this And video. it's a lovely melancholic track. I loved it personally. I'm sure viewers are going to love it as well. How would you describe your journey as an artist? My personal journey as an artist. Yeah. So obviously it's a roller coaster ride, some ups and downs. Sometimes we feel every artist, I think every artist will relate to this, कि हमारा बहुत ups and downs आते हैं in creative things like क्या चल रहा है आज, क्या work करेगा, क्या नहीं करेगा. But normally what I feel is कि अगर आपको अच्छा लग रहा है आपका म्यूज़िक, आपको अच्छा लग रहा है आपका गाना, आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपने गाने से, and people will कई बार ऐसा होता है. फॉर एग्जांपल दिस लाइन, पर तेरी तो शादी हो रही है. इट्स अ वेरी अगर ये लाइन बहुत अच्छी नहीं लगी तो बहुत बेकार भी लग सकती है लोगों को. Definitely. सो मेरे गानों में ना वाइट और ब्लैक होता है, ग्रे नहीं होता. या तो मेरे गाने बहुत अच्छे लगेंगे या फिर कोई रिलेट ही नहीं कर पाएगा. सो मैं कोशिश करता हूँ कि ये वो सिंपल वर्ड्स हों गाने में, वो सिंपल बातें हों जो रोज़ कहता है. अब ये कोई भी बॉयफ्रेंड किसी उसकी गर्लफ्रेंड की अगर फॉर एग्जांपल शादी हो रही है तो वो उसको नॉर्मली बात ऐसे करेगा कि यार तू कितनी प्यारी लग रही है बट तेरी तो शादी हो रही है ना. बट मैं क्या कर सकता हूँ, तेरी तो शादी हो रही है. सो आई दिस लाइन, ये जो लाइन थी ये सबसे पहले मैंने चूज करी थी. यार तेरी तो शादी हो रही है, मैं कुछ कर भी क्या सकता हूँ, तेरी तो शादी हो रही है. सो दैट्स द हुक. एग्जैक्टली. It's a sad journey, I would say, and you wrote the song yourself, right? Did you ever feel that writer's block whenever you are writing songs for yourself? 100%. हर एक राइटर के जर्नी में ब्लॉकेजेस ज़रूर आते होंगे. उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, आई मीट डिफरेंट पीपल. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ. एंड लाइक ऐसा नहीं कि मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ या फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिल रहा हूँ, ऐसा नहीं. मैं बहुत किसी ढाबे के ओनर से मिल लिया, मैं जिससे मिलता हूँ बातें करता हूँ. मैं बातें सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है. तो वहीं से ये सारी कहानियाँ, वहीं से स्टोरी निकलती हैं. लाइक आई सेड के जो मेरा लास्ट ईयर एक अरिजीत के साथ सॉन्ग आया था, तेरा नाम धोखा रख दूँ. मेरे को ये मैं कश्मीर में था. कश्मीर में जो मेरा ड्राइवर था उसने किसी को कोई गाली वाली दी एंड बोला मैं तेरा नाम ये रख दूँगा. वहाँ से मुझे वो थॉट आया. तो वो आपके इर्द गिर्द ही हैं सारी चीज़ें. यू आर just it's like a painter. You have to paint a blank canvas. Yeah. Manan, talking about the music, we have seen musical boundaries of this industry transcending into something else. The horizons have expanded, different things are coming up. There are a lot of remixes that are being made of the old songs. What are your take about these remixes that are being formed today? I'll give you an example. Very philosophical example.
थोड़ा सा फ़नी भी है। आपने सनग्लासेस देखे होंगे एविएटर्स। या श्योर। सो एविएटर्स ना बहुत पुराने हैं, 1960s, उससे पहले वर्ल्ड वॉर में भी यूज़ करते थे लोग, एयरफोर्स में बहुत यूज़ करते थे, आर्मी में बहुत यूज़ करते थे। वो सडनली वो इतने पुराने हो गए कि फिर वो बंद हो गए, वो दोबारा से आए फिर, एंड वो अब तक हैं और वो रहेंगे, यू नो। तो जो फैशन आपका चला गया है ना, वो दोबारा आएगा, वो फिर उसके बाद कंटिन्यू करेगा। तो कमिंग बैक टू रिमिक्सेस, अभी लास्ट ईयर तक दोबारा से वो 90s वाला जोन आ गया था, वो ढोलक पे गाने बन रहे थे, वो सैड सॉन्ग्स बन रहे थे, अब फिर से वो चला गया, यू नो। अब बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं, जैसे नई साउंड्स वाले आर्टिस्ट हैं, आई वुड से एपी की जो साउंड्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बट वो साउंड्स पुरानी हैं। वो जो आप जाओगे, आप 1970s का या 60s का या 80s का म्यूज़िक सुनोगे, जो आप हॉलीवुड का बाहर का म्यूज़िक सुनोगे, वहाँ पे वो साउंड्स यूज़ होती थी तब, अब वो दोबारा अच्छी लग रही हैं। तो ये रेवोल्यूशन तो आता रहेगा, बट वो एक्चुअली क्या है ना, जो लेटेस्ट चीज़ है वो कभी ना कभी हो चुकी है, वो लेकिन इतनी पहले हुई है कि वो लोग भूल चुके हैं, तो वो नहीं लगती है। तो मतलब वी कॉल इट लाइक न्यू साउंड, बट इट इज़ वेरी ओल्ड साउंड, तो उसको हम थोड़ा सा अलग से प्रोफाउंड तरीके से बनाते हैं। टॉकिंग अबाउट रिमिक्सेस, मेरा हमेशा से यही से है, बहुत मेहनत वाला टास्क है, बिकॉज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर कि आप एक बहुत अच्छे गाने को दोबारा से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपनी एक आपको अपना कलर भी रखना है और उसका कलर इंटैक्ट रखना है। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिमिक्सेस ना ही करूँ। मतलब आप मेरे बॉलीवुड में सुनेंगे तो मोस्टली आपको वही देखेंगे, एज एन ओरिजिनल्स देखेंगे। So, since you talked about classics, is there any specific era that's your personal favorite? 80s, 90s, maybe early 20s? जगजीत सिंह साहब। सो जगजीत सिंह साहब इज़ लाइक, यू नो, वो कभी भी कैसा भी गाना बनाते थे, मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। जी। वो आज होते तो और हमें उनको सुनने को मिलता। मेरे लिए वही एक एरा है, मेरे लिए रहमान साहब एक एरा है, मेरे लिए नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक एरा है। ये 3 आर्टिस्ट हैं, इन 3 आर्टिस्ट को मैं कितना भी सुन सकता हूँ, कितना भी इनको मैं इनको रोज़ कुछ ना कुछ समझता हूँ मैं इन लोगों से, कुछ भी इनके गानों से, कॉम्पोजिशन से, बहुत म्यूज़िकलिटी है, बहुत डेप्थ है। और आर्टिस्ट किसी भी चीज़ से कितनी भी चीज़ें सीख सकता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले अनुराग कश्यप सर की एक वो देख रहा था, सीरीज़ देख रहा था, तो उसमें एक, जबकि मैंने देखी हुई है वो पहले से, एंड उसमें एक डायलॉग था कि नवाजुद्दीन सर होते हैं, उनकी वाइफ वो कुछ मिठाई खा रही होती है, तो वो खाती नहीं है उसको, जबकि वो उनको बहुत पसंद है। तो उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया कि थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है, उन्होंने उसके पीछे रीज़न दिया कि मैं ये ना मिठाई इसलिए नहीं खा रही कि बचपन में ना ये हमारे उसमें भगवान को चढ़ाते थे, तो मम्मा डांटती थी, मुझे खाने नहीं देती थी, तो मैंने कभी खाई नहीं है मिठाई, मुझे पसंद बहुत है मैंने, बट ये कभी खाई नहीं है, मुझे टेस्ट नहीं पता, तो मैं ना सपने में खाती थी और मैंने सपने में इसका एक टेस्ट डेवलप कर लिया था, अब मैं ये खाऊंगी तो मेरा वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स नो, अगर आप ये चीज़ समझते हो या फिर आप बयां कर सकते हो, तो आपको एक अलग कैटेगरी का आर्टिस्ट बना देती हैं। जगजीत सिंह साहब के अंदर या फिर खान साहब के इसमें म्यूज़िक में, राइटिंग में वो चीज़ थी जिससे मैं कनेक्ट हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू टॉक्ड अबाउट द लेजेंड्स ओनली, वी आई एम श्योर ऑल ऑफ अस follow them, but is there any specific song that's really close to your heart? या जगजीत सिंह साहब का एक मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ जो मेरा फर्स्ट फेवरेट था। कोई दोस्त है ना रकीब है, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है ना रकीब है। तो ये दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने उनका सुना था। इससे पहले बहुत सारे गाने आए थे उनके। दिस वाज फ्रॉम इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटली रिकॉर्डेड एल्बम, तो उसका ये गाना था। तो मैं उनसे ना बड़ा दिल से कनेक्ट हो गया था बहुत बचपन में ही। Yeah, we all, I'm sure we all are connected to him and we miss him as you mentioned. Yeah. But since you are a multi-talented person, you have a skill set which is huge. Is there any specific genre also that you want to explore, you haven't explored it yet? एक्चुअली क्या है ना, मैं कव्वाली को बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ बॉलीवुड में। अगर मेरे को कव्वाली करने का मौका मिले अच्छे से तो मैं करूँगा, बट विद फ्रीडम ऑब्वियसली। और मेरे को बहुत मज़ा आएगा। मैं हर मूवी में ना ट्राई ज़रूर करता हूँ। मैं इनफैक्ट मेरे पास कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो मैं डायरेक्टर जो भी होते हैं उसके, मैं सर इसको कव्वाली बनाएं, सर इसको कव्वाली बनाएं,
वो पता नहीं हो ही नहीं पा रहा है. We are वो looking करना है. forward to hear you in that Qawwali avatar also. We would love to see. Manan, I saw some of your music videos. I saw you acting there as well. Do you have any noob for acting? Can we see actor Manan in future as well? Actor, yeah, obviously, but I would love to play villain. Okay. बिकॉज मैं मेरा हीरो वाला वो नहीं है. मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं खुद ही गाने लिखता हूँ. क्या होता है ना, लोग मेरे को बोलते हैं कि आप और किसी के गाने क्यों नहीं गाते हो या फिर कैसे. तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप अपना गाना गा रहे हो तो आपके पास बहुत लिबर्टी है. आप ही कंपोजर हो, आप ही राइटर हो उसके. आप किसी भी तरीके से शब्द को मोल्ड कर सकते हो. क्योंकि जब मैं किसी और सिंगर से गवाता हूँ तो मैं बहुत डांटता हूँ उसको. वो डांट नहीं सुन पाता, मैं किसी में सुन नहीं पाऊँगा ऑब्वियसली. तो ये एक चीज़ आ जाती है कि थोड़ा ईजी पड़ जाता है. इनफैक्ट ना ये मल्टी टैलेंटेड जैसे आपने बोला, इट इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो. ये बहुत आसान कर देती है चीज़ें. Naturally, yeah. ये हो जाता है. So, have you always wanted to become a singer or it, you know? आई वॉन्टेड टू बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर ओनली एंड अ राइटर. मेरा सबसे पहला इश्क जो है वो म्यूजिक डायरेक्शन एंड राइटिंग है. सिंगर तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी बनूंगा. अच्छा. And were your parents always supportive of your talent? हमेशा. मतलब उन्होंने मेरी सीरियसनेस देखी. मैंने एक इंसिडेंट बताया था, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास. टी सीरीज बहुत पॉपुलर था. Yeah. तो यू नो आई बंक माई स्कूल एंड मी एंड माई फ्रेंड एंड यू नो वी ट्रैवल्ड, वी चेंज लाइक 3 buses एंड वी केम हियर लाइक इन नोएडा. एंड हम गार्ड को आके बोलते हैं, मेरे दोस्त भी बड़े ऐसे करके, एल्बम निकलवानी है इसकी, बताओ क्या करें, क्या लगेगा बताओ. एंड मैंने ही बोला कि उसको गार्ड को. तो ऑब्वियसली उन्होंने समझा गार्ड ने, कि उन्होंने फिर आइडेंटिटी कार्ड देगा. स्कूल में कॉल किया, वहाँ से डैड को कॉल किया, डैड लेने आए. तो जब इतना सब कुछ जो उस उम्र के अंदर जहाँ पे बच्चे कहीं पे भी चले जाते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं, वो सब करते हैं, मैं उस टाइम पे म्यूज़िक करने के लिए, एल्बम बनवाने के लिए यहाँ पे आ गया. तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को लगेगा ही कि सीरियस है. पर उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हमेशा से बहुत सपोर्ट किया. Yeah, my next question was supposed to be that you know, how did you find a connection with T series? How did they find you found ये तो yourself with them? एक तो फर्स्ट था, ये मेरा फर्स्ट था. मैं आया, फिर डैड ने वो कर दिया. देन उसके बाद ऑब्वियसली लाइफ की जद्दोजहद और ये सब म्यूज़िक वगैरह करता रहा मैं. टी सीरीज़ आई एक्चुअली लेफ्ट मुंबई इन 2014. मैं बॉम्बे में था, बहुत सारे काम किए, बहुत लोगों से मिला. इनफैक्ट सबसे मिल लिया था भूषण सर छोड़ के. भूषण सर को छोड़ के सबसे मिल लिया था. मैं वहाँ से बॉम्बे ना छोड़ के यही करके आया था, मैं अपना काम करूँगा यार. सब कुछ तो है, यूट्यूब है, मेरे प्रोडक्शन हाउस भी है यहाँ पे, सारा कुछ स्टूडियोज़ है, मैं अपना काम करूँगा. मैं बॉम्बे अब तब आऊँगा जब भूषण सर बुलाएंगे. वो फिर पता नहीं क्या मैजिक हुआ या मैनिफेस्ट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, वो भूषण सर नहीं बुला लिया फिर. Lovely, lovely. So you just got lucky there. I want to ask you that since I have been mentioning it again and again that you have multiple skill set. Is there any specific skill that you enjoy the most, be it writing, composing? Which one do you love the most? इनके अलावा एक और चीज़ है जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, जो बहुत किसी को भी नहीं पता. इनफैक्ट मेरे बड़े बड़े क्लोज वंस को पता है. लाइक आई सेड ना कि आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम अ वेरी गुड पेंटर. Oh, that's lovely. Viewers, he's a painter as well. So he's just not. वेरी वेरी गुड कुक. मैं बहुत अच्छा कुक हूँ. मैं बहुत He's a cook as well. Okay, so you are a ये package. सारी चीज़ें ना बेसिकली वो एक आर्टिस्ट अच्छे से करता है. ये भी आर्ट है, अच्छा खाना बनाना भी एक आर्ट है. मैं यू वोंट बिलीव, मैं जब खाना कुछ भी बनाता हूँ, लॉकडाउन में मैंने बड़ा खाना बनाया, अब तो नहीं बना पा रहा, टाइम नहीं है. तो मैं नमक ना ऐसे डालता हूँ, ऐसे करके नमक निकाला, ऐसे करके बिना वो मेजरमेंट के वो सब चीज़ें करता हूँ मैं. The more the less. Fault के Exactly. मामले में तो. I want to ask you that since you are from Haryana, if I'm not wrong, did you ever struggle with your accent? नेवर. Never. क्योंकि हरियाणा ये ना बहुत ज़्यादा एक मिथ है कि हरियाणवी लोग एक्सेंट के साथ वो करते हैं. मैं तो रणदीप हुड्डा हरियाणा से, वो उतनी जितनी अच्छी हरियाणवी नहीं बोलता मैं. तो मैंने अगर स्ट्रगल किया तो मैंने अच्छी हरियाणवी बोलने में किया है. हरियाणा में बेसिकली देयर आर लाइक 17 तरीके की हरियाणवी हैं. तो मेरे पेरेंट्स का सबसे अच्छा पार्ट मुझे क्या लगता था ना, जो हमारी छुट्टियाँ होती थी तो कुछ टाइम के लिए मुझे गाँव भी भेजते थे, कुछ टाइम के लिए मुझे दिल्ली के अंदर मेरे कज़न्स के पास भी भेजते थे. ये भी सीखना ज़रूरी है, वो भी अपने रूट से जुड़े रहना भी ज़रूरी है. तो सब कुछ सिखाया है मेरे पेरेंट्स ने. तो वो एजुकेशन मेरे को बचपन से मिली है कि सब कुछ सीखो बट अपनी रूट्स मत भूलो. Lovely, lovely. Manan, you talked about your difficulties. We had a conversation about your ups and downs. You know, Diamond had to undergo a lot of processing and complexities just to become that shining stone. And मेरा परसों का इंस्टाग्राम का स्टेटस तो नहीं पढ़ा? नहीं. I swear मैंने नहीं पढ़ा. So I think you are someone because of your difficulties. Is there any word of advice that you would like to give to the aspiring musicians also? Okay, मैं aspiring musicians को
सिर्फ 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ. देयर इज़ नथिंग लाइक स्ट्रगल. जस्ट एलिमिनेट दिस वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी. इट इज़ ऑल हार्ड वर्क. Whatever you're doing is hard work. Count it as a hard work, first of all. Secondly, be consistent. जो भी आप कर रहे हो उस पर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो एंड बी कंसिस्टेंट. आपके आज 10 लिसनर्स हैं तो कल 1000 होंगे, उसके बाद लाखों में भी आएंगे. एंड हैव पेशेंस. Don't go for easy and cheap stuff. Yeah, that's the key. That's the key. Patience is the key. I'm sure you might have followed this year's Oscars. It was a historic year for India. A song from South Indian entertainment industry reaching at that level, which was a far-fetched dream for us, and winning at the same time. How do you think it's going to change standards of music in our industry? Yeah, that is a different level of business, I would rather say, because I personally feel like कि मैं भी वो चीज़ करूँगा, कभी अवार्ड्स वगैरह के लिए फाइट करूँगा या फिर कुछ पुश करूँगा, ये सब चीज़ें करूँगा. बट हाँ, एक बारी जब मैं अच्छे से म्यूज़िक कर लूँगा, करीम साहब जिनको अवार्ड मिला है, करीम साहब जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो म्यूज़िक दे रहे हैं. एंड उन्होंने इतने अच्छे और बड़े बड़े गाने दिए हैं जो कि एजुकेशन है बेसिकली हम लोगों की. सो मैं इस अवार्ड को जो इंडिया को मिला है, जो उनके म्यूज़िक को मिला है, मैं उनके पूरे करियर का अवार्ड मानता हूँ इसको. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर वन सॉन्ग, ट्रस्ट मी, इट इज़ द अवार्ड फॉर हिज होल करियर. एंड उन्होंने इतने बड़े बड़े गाने दिए हैं, बॉलीवुड में इतने अच्छे गाने दिए हैं. तू मिले उनका गाना है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. सो मैं किसी को भी अवार्ड मिलता है, मैं वो पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए करता हूँ. मैं इसके पूरे करियर के इसके लिए अवार्ड मिल रहा है. और अगर पूरे करियर की मेरे से लोग बोलते हैं तू अवार्ड के लिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपना पिच कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर ध्यान है कि नहीं, मैं कभी सॉन्ग के लिए जब मेरे को लगे मेरा करियर अवार्ड वो करता है, डिजर्व करता है, देन आई विल ऑब्वियसली ट्राई फॉर दैट टू. एंड obviously it's a proud moment for all of us के अपने गाने को वो मिला है, अवार्ड मिला है. Manan, so we talked about Natu Natu as well, like you are saying. I wanted to ask you what's next for Manan Bharadwaj. I really want to try something new. अभी जो फॉर एग्जांपल मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है एनिमल विद रणवीर सर, उसमें मैंने एक गाना ट्राई किया है जो मैंने वैसा म्यूज़िक कभी नहीं दिया, वैसा गाना मैंने बनाया नहीं है कभी. तो उसमें एक गाना ऐसा भी है जो एक नया मनन भारद्वाज दिखाएगा, लोगों को सुनाएगा भी. एंड प्लस उसके बाद एक फिल्म आ रही है मेरी यारियां 2. ओके, या आई हैव गिवन दी लाइक आई थिंक टिल डेट आई हैव गिवन दी होल एल्बम. ऑलराइट. एंड आई हैव रिटन ऑल दी सॉन्ग्स. उसमें बहुत कंट्रास्ट नज़र आएगा. एवरी सॉन्ग इज़ डिफरेंट एंड एवरी सॉन्ग इज़ लाइक वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे गाने हैं. बाकी ऑब्वियसली we are looking forward to hear that out as well. But is there any specific artist that you would love to collaborate with in future? I wish जगजीत सिंह साहब, I wish. अब बहुत डरते करता मैं उनके साथ. अभी फिलहाल एक्चुअली फॉर एग्जांपल आई एम अ डाई हार्ड रहमान साहब फैन. बट मुझे कभी ऐसा नहीं होता कि मैं मिलूँ उनसे. मेरी फिलॉसफी बहुत डिफरेंट है. वही वाली बात है कि वो जो मिठाई मैंने सपने में सोच रखी है ना, मैं उसका टेस्ट अपना बना के रखना चाह रहा हूँ. मैं उसको रियलिटी में वो नहीं करना चाह रहा. तो इसलिए क्लब में ऑब्वियसली शायद अगर जगजीत सिंह साहब होते भी तो मैं भी उनके साथ नहीं कर पाता. वो भी ये है. ऐसा कुछ भी नहीं है यार. मैं इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो ऐसी आवाज़ निकलेगी, ऐसी आवाज़ आएगी. तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गाना बनाता हूँ, उसके लिए मुझे पता होता है मेरी आवाज़ इज़ नॉट द राइट आवाज़ फॉर दिस सॉन्ग. तो वैसी आवाज़ मुझे समझ नहीं आती जब, तो मैं वैसी आवाज़ ढूंढता हूँ. मेरे को तो नए लोग चाहिए. ऐसा मेरे को ड्रीम कोलैब नहीं है. जितने थे वो मैंने कर लिए. मास्टर सलीम, मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, उनकी गायकी को बहुत एडमायर करता हूँ. उनके साथ मैंने गाने कर लिए हैं. अरिजीत के साथ मैंने गाना कर लिया. आई थिंक दैट हिंदुस्तान को सबसे अच्छा सिंगर जो आज तक मिला है वो अरिजीत सिंह है. तो सबके साथ कर लिया. बट अब तो मेरे को नई वॉइसेस चाहिए, कोई प्यारा, कोई अच्छा अलग सा. Yeah, definitely you will find it when we are enjoying your music, definitely. Manan, last but not least, coming back to your track which recently released, loved it. It is sounding very promising. Thank you it's so much. melodious. Can you sing a few lines from that song for us? Sure. So इसके बिल्कुल क्रक्स जो है इस गाने का, मैं वो आपको शेयर करता हूँ.
दुल्हन के जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है मेरी जान, हाथों में मेहंदी है उसी रंग की, पर है लिखा किसी और का नाम। रहता जहाँ था मैं उस ही जगह पे, और कोई आके है बसा, तेरे बिना नहीं सोची जिंदगी, तुझसे ही तो जुड़ी थी हर खुशी, पर तेरी तो शादी हो रही है। Wow. Never Together by Manan Bharadwaj. Everyone, thank you so much for Thank you talking so to much, CNN Sakshi. News Thank 18. you. All the best for your Thank recent you so track and much. for all the upcoming projects as well. Thank you so We'll much. keep having conversations with you.